وینزویلا کے دارالحکومت میں 7 زوردار دھماکے، بجلی کی فراہمی معطل، آدھا شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دھماکے کراکس کے جنوبی علاقے میں فوجی اڈے کے قریب ہوئے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے علاقے میں جنگی طیاروں کی پروازیں بھی سنی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین روانہ، پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کسی بھی قسم کے بڑھتے ہوئے اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن و استحکام کی خاطر مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق حالیہ بیانات مداخلت قرار۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایرانی نے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ دیا۔ مطالبہ کیا اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک صدر ٹرمپ کی ایران کو دی گئی دھمکی کی مذمت کریں۔ انہوں نے خبردار کیا بیرونی دباؤ یا فوجی مداخلت کے بہانے اندرونی بدامنی کو بھڑکانا ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں 8 افراد جان سے گئے، 100 سے زائد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کا مظاہرین کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار، ایرانی حکام پر زور دیا اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حقوق کا احترام کریں۔ Mr. Mayor, thank you for appointing me to be your chair of this advisory committee on the judiciary. As an attorney who has litigated in the courts of this city for 15 years, I know and I have seen firsthand the power that judges have on people, regular people, working people, and attorneys. نیو یارک کے معروف پاکستانی نژاد امریکی وکیل علی نجمی کے لیے اعزاز۔ میئر نیو یارک کی عدالتی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ مقرر میئر زہران ممدانی نے علی نجمی کی تقرری ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کی۔ کہا عدالتی امور میں شفافیت کے لیے علی نجمی کا انتخاب کیا۔ عدالتی مشاورتی کمیٹی کے لیے علی نجمی سے بہتر کوئی نہیں۔ علی نجمی بولے میئر نیو یارک کی عدالتی مشاورتی کمیٹی کی سربراہی اعزاز ہے۔ عدالتی امور میں شفافیت کے فروغ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ زہران ممدانی نے پہلے ہی روز سابق میئر کے تمام فیصلے منسوخ کر دیے۔ بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ جنگ میں فتح کے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ سفارتکاری میں خود ایک مشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ امریکہ میں نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے ماضی میں بھی مل کر کام کیا۔ پاکستان اور امریکہ دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں قریبی اور اچھے تعلقات وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی کے مائی کلاچی پھاٹک کے قریب سے ملنے والی 4 لاشوں کا ابتدائی پوسٹ مارٹم۔ پولیس ذرائع کے مطابق لاشوں پر تشدد اور بھاری چیزیں لگنے کے نشانات ہیں۔ لاشوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ مرنے والوں میں بزرگ خاتون بھی شامل۔ خشک مین ہول میں لاشوں کے اوپر کمبل ڈالا گیا تھا۔ کمبل کے اوپر بڑے پتھر موجود تھے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے لاشیں کئی روز پرانی ہیں۔ ایک لڑکے کے سر، چہرے اور گردن پر تشدد کے نشانات ہیں، جس کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہے۔ 10 سالہ لڑکے کی لاش گلا کٹی ہوئی ہے۔ لڑکی کے سر، چہرے اور گردن پر تشدد کے نشانات ہیں۔ لڑکی کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ بڑے ہمارے لیڈرز اکٹھا ہو رہے ہیں، ایسا ماحول نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اس لیول پہ یعنی لیڈرشپ لیول پہ اگر اس بات کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ ان پولیٹیکل ایشوز کو ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپیس دے کے وہ ریزالو کرنا ہے، پھر یہ بات وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کے آفر میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں تو خوشی ہوگی۔
वज़ीर आज़म ने भी डायलॉग की ऑफर अप्रूवल के बाद ही की होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं 5 बड़े फैसले कर लें तभी बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बानी पीटीआई का मुत्तफिक होना जरूरी है। बानी पीटीआई डायलॉग नहीं चाहते, उन्होंने अपने लिए मुश्किलात पैदा की। पहिया जाम हड़ताल कामयाब न हुई तो पीटीआई को सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा। 9 मई और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद एहतजाज करके आपने देख लिया। हमारा सियासी मशवरा है कि पुरतशद्दुद एहतजाज ना करें। अचकज़ई की जानिब से तफसीलात जमा करा दी गई, स्पीकर जल्द फैसला कर लेंगे। बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने मुझे नहीं कहा है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मिलूंगा। पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जैसे जहां जलसे जुलूस पर पाबंदी हो। लाहौर का दौरा आवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए था। लाहौर दौरे में हम सब से गलत ज़बान का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो रद्द अमल था। हमने गलत ज़बान के इस्तेमाल पर माजरत की है। 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। जो कुछ पंजाब में हुआ सिंध में नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल मिलेगा। सिंध सरकार ने पीटीआई क़यादत को यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह ने पीटीआई सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख से राबता किया और कहा सोहेल आफरीदी को सिंध आमद पर खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और पार्टी क़यादत ने सोहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का फैसला किया है। हलीम आदिल शेख ने पैगाम सोहेल आफरीदी को पहुंचा दिया। वज़ीर आला केपी ने कहा प्रोटोकॉल नहीं, सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान ने 23 अगस्त 2016 को इस हवाले से मुकम्मल बयानिया दिया था 4-5 अल्फाज में कि आज से हम MQM पाकिस्तान के तमाम फैसले पाकिस्तान में करेंगे और ये हमारा मुकम्मल बयानिया है। यही बयानिया तमाम चीज़ों का अहाता करता है। क्या आप मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल तायीद करते हैं? खालिद मकबूल सदीकी से सहाफ़ी का सवाल। चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने कहा 23 अगस्त 2016 को हमने बता दिया था पार्टी के फैसले अब पाकिस्तान में करेंगे। ये हमारा मुकम्मल बयानिया है जो तमाम चीज़ों का अहाता करता है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फीले मनाजिर, गजब की ठंड। कालाम में दर्जे हरारत -4, मालन जब्बा में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खून जमा देने वाली सर्दी में सयाहों का हल्ला गुल्ला जारी। गिलगित के वादी नलतर का हुस्न बर्फबारी से निखर गया। सर्दी भी बढ़ गई, चित्राल में हर सू छा गई। ठंडे ठार मौसम में बड़ों के साथ बच्चों के भी मजे आ गए। बलोचिस्तान भी अकबस्ता हवाओं की लपेट में। कल्लात का दर्जे हरारत -6, कोयटा का -3 तक जा पहुंचा। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोग मौजूद नहीं, सर्द मौसम की कुदरती फॉग बरकरार है। मौसमी नमी के बाद स्मोग के मुज़र ज़रात फ़ज़ा से साफ हो गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ के अहकामात पर एंटी स्मोग एक्शन मौसर अंदाज में जारी है। मुसलसल मॉनिटरिंग के बायस फ़िज़ाई मयार में वाज़ेह बेहतरी आई है। एडवोकेट मियां अली अशफाक और दीगर वकला ने रियाज सोलंकी एडवोकेट और फतह चांडियो एडवोकेट के खिलाफ सिंध बार काउंसिल में दरख्वास्तें दायर कर दी। दोनों के लाइसेंस मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। रियाज सोलंकी और फतह चांडियो ने साथी वकला के साथ मिलकर रजब बट पर तशद्दुद किया। बैग छीना जो वापस किया गया, लेकिन उसमें मौजूद 3 लाख रुपए गायब थे। हंगामा आराई के बाद रजब बट को कराची बार के दफ्तर ले जाकर दोबारा तशद्दुद किया गया। रजब बट ने रज़ाकाराना पेश होकर अबूरी जमानत हासिल की। वकला के इक़दामात लीगल प्रोटेक्शनर एंड बार काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तादीबी कार्रवाई शुरू की जाए। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से मियां अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है।
भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजीज के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया। सेक्रेटरी बीसीसीआई का कहना है मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं बन सकते। बॉलीवुड अदाकार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान को मुस्तफिज को मुंतखब करने पर भारत में गद्दार करार दिया गया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, जराइम, धोखाधड़ी और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की अमाजगाह बन चुका। नाम निहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी H-1B वीजों की फरोख्त का धंधा उरूज पर। भारतीय काउंसिल खानों में जाली डिग्रियों के हामिल नौजवानों को अमरीकी H-1B वीजा देने के इंकशाफात। भारतीय जरीदे दी कम्यून ने मोदी की नाअहली और भारत में जाली डिग्रियों के नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर दिया। लिखा, केरला पुलिस ने 100 करोड़ का मकरू धंधा करने वाले मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए। नेटवर्क भारत में 10 लाख से ज्यादा अफराद को जाली डिग्रियां दे चुका है। रावलपिंडी में शहरी से गाड़ी छीनकर फरार होने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक, 2 फरार। सीपीओ ने बताया मुलजिमान ने ताजिर को भी कत्ल किया था। हलाक डाकू डकैती, कार छीनने के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने काची के ताजिरों की शिकायत के इजाले के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी। मकसद कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री जोन में पुरअमन माहौल को यकीनी बनाना है। काची के ताजिरों ने वजीर आला, वजीर दाखिला सिंध और आईजी से मुलाकातें की थीं। डीआईजी ईस्ट फर्रुख अली की सरबराही में 5 रुकनी टीम ताजिरों की शिकायत का जायजा लेगी। साल हमने 1762 केसेस का इंदराज किया। 50% से ज्यादा पुलिस ने अपनी कारकर्दगी में इजाफा किया। पुलिस पर हमलों में तेजी आई और उनकी तादाद तकरीबन 536 रही। 2025 में 3,277 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। 1,300 से ज्यादा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का कहना है पुलिस मुकाबलों में 459 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दी के 1762 मुकदमात दर्ज। पुलिस पर 536 हमले हुए। 324 को नाकाम बनाया गया। 159 पुलिस एहलकार शहीद हुए। मुनासिब कीमत न मिलने पर पाकपतन में किसान इत्तेहाद ने बतौर एहतजाज आलू जला दिए। किसान कहते हैं आलू की भरपूर पैदावार हुई, लेकिन आलू की कीमत इतनी कम है कि अखराजात पूरे नहीं हो रहे। फी एकड़ 2 लाख रुपए से जायद का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का केबल ऑपरेटर्स को इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस के इजरा का ऐलान। क्लास लाइसेंस 10 साल की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन को फोन। कहा केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ जो वादा किया वो पूरा कर दिया। खालिद अराई ने कहा सार्फिन को इजाफी सहूलत की फराहमी से केबल ऑपरेटर्स को मुनासिब रोजगार मिल सकेगा। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से पैमरा को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली का रफा क्रॉसिंग के मिस्री हिस्से का दौरा। हिलाल अहमर के अरकान और इमदाद ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर से मुलाकात। अस्पताल का भी दौरा किया। गजा से आए जेर इलाज फलस्तीनियों की अयादत की। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। शदीद सर्दी ने गजा वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। खेमों और पनागाहों में मौजूद फलस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा है वो अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए सहूलतकारी के लिए तैयार है। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा मुलाकात में अमरीकी सदर ने शुमाली कोरियाई सरबराह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। शुमाली कोरिया की जानिब से मुलाकात की इस ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया गया था। सदर ली जे म्योंग ने बताया हम जंगी कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी का हामी है।
अंडर 19 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नॉकआउट कर दिया। अफगान टीम को 133 रन से शिकस्त, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। हरारे में छोटे शाहीनों ने पहले खेलकर 239 रन का हदफ दिया। समीर मिन्हास 56, उस्मान खान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में अफगान टीम सिर्फ 105 रन पर ढेर हो गई। उमर ज़ेब ने तबाही फेरते हुए 5 शिकार किए। पाकिस्तान फाइनल में मेजबान जिम्बाब्वे से मंगल को टकराएगा। बहुत जल्द पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट लीग कराएंगे। विमेंस वर्ल्ड कप के पाकिस्तान में इनेकाद की भी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात की। हेड कोच वहाब रियाज ने तरबियती कैंप के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान विमेंस टीम फरवरी में वनडे और T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। लाहौर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए काम तेजी से जारी। दरियाए रावी से निकलने वाली नहर में तैरने वाले रेस्टोरेंट की तकमील रवां साल होने की तवक्को है। रेस्टोरेंट में बैक वक्त 200 अफराद खाना खा सकेंगे। टेक्सास में पैराट्रूपर लैंडिंग के दौरान फुटबॉल नेट में उलझ गया और 35 फुट की बुलंदी से गिरा। हुकाम का कहना है पैराट्रूपर खुशकिस्मती से महफूज रहा। मैक्सिको में 6.5 शिद्दत का जल्जला, इमारतें लरज उठीं, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मैक्सिको की सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक अलार्म बज उठा, जिसके बाद तमाम लोग इमारत से बाहर चले गए। जल्जले के बाइस 116 साल पुराना आज़ादी का मुजस्मा हवा में झूलता रहा। और रवां साल का पहला सुपरमून आज नजर आएगा। पाकिस्तान में सुपरमून का नजारा शाम 5:51 से किया जा सकेगा। चांदी की रोशनी 99.8% तक होगी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक इस दौरान शहाबियों की बारिश होगी।